یہ ہے وقت میڈیا. پیش خدمت ہندوستان کے صنعتی اور ادبی شہر مراد آباد میں ہوا جشن صحت منور رانہ آل انڈیا مشاعرے اور کبھی سمیلن کا شاندار ویڈیو. اس مشاعرے کو آرگنائز کیا سہیل حسن خان ویلفیئر سوسائٹی مراد آباد نے. اس میں شرکت کی آپ سب کے محبوب شاعر جناب جوہر کانپوری صاحب نے اور اپنے خوبصورت اشعار سے لوگوں کو نوازا. جی ہاں، یہ مشاعرہ آپ دیکھیں گے، لیکن پہلے جینگو بنانا کی بات سن لیتے ہیں 40 سیکنڈ میں. جینگو بنانا، جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ. 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام. آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا. جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں. لکھیں JANGOBANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی. سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا. ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر. مزید میں اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے یہی کر سکتا ہوں کہ جناب جوہر کانپوری کو مائک پر پکار لوں. جوہر کانپوری صاحب کے بارے میں اکثر میں مشاعروں میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک شاعر ہی نہیں ہے، یہ ہمارے سماج کے مفکر بھی ہیں اور یہ ہماری قوم کے ترجمان بھی ہیں. قوم کسی مذہب سے تعلق نہیں، قوم غریبوں کی، قوم ان کی جن کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، اور جناب جوہر کانپوری نے ان کی ایک مضبوط آواز بنا کر پوری دنیا میں اپنی پہچان بنائی. یہ بنا لیں، کوئی بات نہیں، بہت اچھا سنا آپ نے. فاصلہ جتنا ہے دو سانسوں کے بیچ، زندگی سے موت کتنی دور ہے. واہ واہ، کیا کہنا. فاصلہ جتنا ہے دو سانسوں کے بیچ، زندگی سے موت کتنی دور ہے. زلزلہ گزرا ہے یہ کہتا ہوا، آدمی کس بات پر مغرور ہے. بہت شکریہ. فاصلہ جتنا ہے دو سانسوں کے بیچ، زندگی سے موت اتنی دور ہے. زلزلہ گزرا ہے یہ کہتا ہوا، آدمی کس بات پر مغرور ہے. آدمی یہ نظم پچھلے 3 سالوں سے فرمائش ہو رہی ہے، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، نہیں پڑھ سکا. آج ضرور پڑھ دوں گا، آج ایسی محفل ہو گئی. بالکل ٹھیک، آج میں وہ نظم ضرور پڑھ دوں گا، لیکن کچھ شعر سن لیجیے پھر وہ نظم. انتظامات بھی بہت زیادہ ہیں، یوسف بھائی بہت پریشان. دل سے اٹھتا ہے دھواں جو اسے بادل کرتے. اے خدا دھوپ کو رنگین سا حاصل کر دے. دل سے اٹھتا ہے دھواں جو اسے بادل کر دے. نفرتیں لوٹ رہی ہیں تیری دنیا کی بہار، سارے سنسار کو اب عشق میں پاگل کر دے. نفرتیں لوٹ رہی ہیں تیری دنیا کی بہار، سارے سنسار کو اب عشق میں پاگل کر دے. یہ ٹوٹے بت گرے مینار اور ممبر نہیں ہوتے، نظر میں خون میں ڈوبے ہوئے منظر نہیں ہوتے. شہیدوں نے جو چاہا تھا وہی ہندوستان ہوتا، اگر کمزرف میرے ملک کے رہبر نہیں ہوتے. شہیدوں نے جو چاہا تھا وہی ہندوستان ہوتا، اگر کمزرف میرے ملک کے رہبر نہیں ہوتے. کیا کہنا. اب کیا ہے کہ آزادی وطن پر قربان ہونے والے، آزادی وطن پر قربان ہونے والے، آزادی وطن پر قربان ہونے والے بوسیدہ مسجدوں کے لاکھوں امام بھی ہیں. آزادی وطن پر قربان ہونے والے بوسیدہ مسجدوں کے لاکھوں امام بھی ہیں. اب بھی ہمارے گھر میں بھارت کو مٹنے والے عبدالحمید بھی ہیں، عبدالکلام بھی ہیں. اب بھی ہمارے گھر میں بھارت پہ مٹنے والے عبدالحمید بھی ہیں، عبدالکلام بھی ہیں. اسی سلسلے کا ایک قطعہ اور حاضر کرنا، سماعت فرمائیے گا کہ یہ ننھے ذہن بنیں گے وقار بھارت کا.
कोई तमीज नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मैं शेर पढ़ रहा हूँ और शेर आप हमेशा सुनते हैं। मैं 20-25 साल 30 साल से आ रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मुरादाबाद में शायरी सुनी जाती है। तकलीफ की कोई जरूरत नहीं कि मैं पहले बात को शेर का मतलब समझाऊं, बाद में शेर पढ़ूं। आप समझते हैं, शेर पढ़ता हूँ। ये नन्हे सहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। ये नन्हे सहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ। ये नन्हे सहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। कि हम कभी मैंने शेर कहा था, और शेर पढ़ने से पहले मैं इसलिए जरूर बताया, थोड़ी सी बात करता हूं कि 1400 बरस पहले अरब की सरजमीन से हमारे रसूल ने यह फरमाया था कि मुझे इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हुई महसूस होती है। हम तसव्वुर करते हैं कि जिस तरफ आपने इशारा किया था वो मुल्क हिंदुस्तान था। बस यहां से मेरा शेर बनता है कि मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। फकत मुझे को नहीं मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। फकत मुझे को नहीं मेरा मुल्क जान से अजीज, फकत मुझे को नहीं मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये लगाकर शेर सुनने लगे हैं। मैं हाजिर करता हूं कि किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है, भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। क्या कहना है? किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है, भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। क्या कहना? किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है, किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है, भंवर के देवता साहिल खरीद देते हैं। फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। जहां रहना मुहाफिज बन के रहना तुम गुलिस्तां के, जहां रहना मुहाफिज बन के रहना तुम गुलिस्तां के, ये अपना दीन कहता है यही ईमान कहता है। जहां रहना मुहाफिज बन के रहना तुम गुलिस्तां के, ये अपना दीन कहता है यही ईमान कहता है। जभी तो देश पे मरने को हम तैयार रहते हैं, वतन पर जान देने के लिए कुरान कहता है। जभी तो जान देने के लिए, जभी तो देश पे मरने को हम तैयार रहते हैं, वतन पर जान देने के लिए कुरान कहता है। वतन पर जान देने के लिए कुरान कहता है। और कुछ शेर अगर आज की इजाजत हो तो पढ़ूं। धुएं को आबरू और गम को मसरत करते रहते हैं, धुएं को आबरू और गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर हैं जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं, कलंदर हैं जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन छुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हमें इन छुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं, हमें इन छुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते, अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते, अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, आप इतना अच्छा सुनने लग गए हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि शेर आपको सुनाए जाए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, सुनिएगा, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए।
भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ऐसा मतलब पड़ा जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। अपने ऐबों पर नजर रखो संवरने के लिए, अपने ऐबों पर नजर रखो संवरने के लिए। दूसरे का ऐब दुनिया से छुपाना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अपने ऐबों पर नजर रखो संवरने के लिए। दूसरे का ऐब दुनिया से छुपाना चाहिए। है यही गीता में लिखा है, यही कुरान में है, यही गीता में लिखा है, यही कुरान में। दुश्मन मुशायरा खत्म हो गया। आगे आगे है यही गीता में लिखा है, यही कुरान में है, यही गीता में लिखा है, यही कुरान में है, यही गीता में लिखा है, यही कुरान में। दुश्मनों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं। क्या कहना? मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास वो तूफान रखते हैं। अच्छा, कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर क्या कहना है? हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वाह वाह, पैगाम वाली शायरी। हर शेर में कोई ना कोई पैगाम और अपनी तारीफ। जनाब जौहर कानपुरी, आपकी मोहब्बतों के सहारे कामयाबी के साथ जितना कलाम की सुन सके आप लोग, उतना कलाम आपको। आप देख रहे हैं मुरादाबाद का मुशायरा। जी हाँ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मुरादाबाद की यह तारीखी जामा मस्जिद, जी हाँ, 1624 में जब शाहजहां के दौरे हुकूमत में शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पर शाहजहां के गवर्नर रुस्तम खान ने मुरादाबाद शहर को बसाया, तो ये जामा मस्जिद बनवाई और एक मंदिर भी बनवाया। जी हाँ, इस तारीखी जामा मस्जिद के दीदार आप कर रहे हैं। इससे मुतालिक एक जानकारी वीडियो के आखिर में सुनना ना भूले। जी हाँ, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब और इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब। शहंशाह गजल जिगर मुरादाबादी के शहर मुरादाबाद में हुए इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न सेहत मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी ने जनाब मुनव्वर राना साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए 1 लाख रुपए नकद देकर एजाज से नवाजा। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी ने। सोहेल हसन खां मुरादाबाद के मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत थे। जी हां, जनाब सोहेल हसन खां साहब समाजवादी पार्टी मुरादाबाद के पूर्व महानगर अध्यक्ष जनाब शुएब हसन खां पाशा के वालिद मोहतरम थे। सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद के अध्यक्ष हैं जनाब रईस खां साहब, उपाध्यक्ष हैं जनाब शहजाद कमर साहब, सचिव हैं जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब, कोषाध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, सचिव हैं जनाब सलीम अहमद वारसी साहब, सह सचिव हैं जनाब मोहम्मद खालिद साहब और सह सचिव हैं जनाब मोहम्मद नदीम साहब। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना नुमाया किरदार अदा किया।
मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, मुशायरे के कन्वीनर जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब, उन सभी हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में उनका सपोर्ट किया। मैं हूं आपका दोस्त शफीक खान और ये है मुरादाबाद की तारीखी जामा मस्जिद। जी हां, हम आप तक लेके आते हैं मुशायरे, लेकिन इस वक्त जामा मस्जिद के हवाले से, मुरादाबाद की जामा मस्जिद के हवाले से आपको एक जानकारी दे दूं। पूरे हिंदुस्तान में यूं तो कई जामा मस्जिदों में आप गए होंगे, मस्जिदों में आप गए होंगे, लेकिन इस तारीखी जामा मस्जिद की ख़ास बात यह है कि ये इकलौती जामा मस्जिद है जो किसी नदी किनारे वाक़ है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये नदी जिसे कहते हैं हम राम गंगा नदी। बहरहाल कल रात आपने देखा जिगर मंच से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द आप ये पूरा मुशायरा हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो फिर आप इस वेबसाइट पर विजिट करें और YouTube चैनल पर पहुंच जाएं और वहां आप जीमेल से हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे मुशायरे के वीडियो मिलें तो अब हम व्हाट्सएप पे भी आ चुके हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हफ्ते में 2 वीडियो आप तक पहुंचा दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुशायरे के वीडियो हमारी टीम जो कवर करती है उसके देखे जाते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन उमेर के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, शहर जिगर मुरादाबाद से।